الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اب جس زمانے میں ہم لوگ جی رہے ہیں، نوجوان طبقہ بیدار ہوا ہے اور انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے فوراً انٹرنیٹ تلاش کر لیتے ہیں، تو یہ ایک اچھی پہل ہے، کم سے کم آغاز تو ہوا دین سیکھنے کا۔ اچھا، انٹرنیٹ سے بڑی سہولت بھی ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ کسی سے جھجک نہیں ہوتی ہے، آپ کسی عالم دین کے پاس جائیں گے تو تھوڑا سا جھجک محسوس ہوگی، فوراً جو ہے کہ ٹائپ کیا اور مسئلہ جو ہے کہ حاضر ہے۔ وقت کی بچت، اگر آپ گھر سے اگر مسجد تک جائیں گے کسی عالم کے پاس تو آپ کے پاس ٹائم ہونا چاہیے، گھر پہ موبائل رکھا ہوا ہے، پھٹ سے جو ہے کہ آپ نے سرچ کیا، ٹائم کی بچت ہو گئی، ہر طرح کے مواد مل جاتے ہیں۔ یہ ساری سہولتیں اللہ نے اس زمانے میں نیٹ کے ذریعہ ہمارے پاس رکھی ہے، یہ بہت بڑا فضل ہے اللہ رب العزت کا، اور اللہ کا شکر و احسان ہے کہ ہماری نوجوان نسل اس طرف تیار ہو رہی۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ایسے نوجوانوں کو جو دین کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں، دین کی طرف ان کے قدم آگے بڑھ رہے ہیں، مبارکباد کے مستحق ہیں۔ لیکن کہیں نہ کہیں انٹرنیٹ سے دین حاصل کرنا نقصان دہ بھی ہے۔ ہر چیز کے اچھا پہلو بھی ہوتا ہے اور اسی چیز کے برے پہلو بھی ہوتے ہیں۔ انٹرنیٹ میں اچھا پہلو تو یہ ہے کہ آپ کا وقت بچ جاتا ہے، ایک عالم دین سے آپ پوچھنے جائیں گے تو ان سے جھجک محسوس ہوگی۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہر طرح کے سوالات آپ پوچھ نہیں پائیں گے، حالانکہ یہ بھی ایک کمی ہے۔ لیکن نقصان کیا ہوتا ہے، آپ لوگ بھی سرچ کرتے ہوں گے تو محسوس ہوتا ہوگا کہ ایک ہی مسئلے میں دو باتیں آ جاتی ہیں۔ ایک سوال کیا، اس میں نہ جانے کتنی ویڈیوز ہیں، اور کسی ویڈیو میں کچھ کہا جا رہا ہے، کسی ویڈیو میں کچھ کہا جا رہا ہے، آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ کیا کیا جائے۔ ایک سوال آپ نے پوچھا اور اس کا جواب تو دیا گیا، مگر وہ جواب آپ کو مطمئن نہیں کر پا رہا ہے، یہ بھی نقصان ہے۔ اچھا، انٹرنیٹ پر کسی پر بندش نہیں ہے کہ آپ مسئلہ کا جواب نہیں ڈال سکتے ہیں، کوئی بھی ڈال سکتا ہے۔ اچھا، انٹرنیٹ نے ابھی تک کوئی ایسا سافٹ ویئر یا کوئی ایسی جو ہے کہ ویب سائٹ تیار نہیں کی ہے جو جانچ رہا ہو کہ یہ مسئلہ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ جانچنے کی ابھی تک تو کوئی، میرے معلومات کے حد تک ابھی تک کوئی بھی ایسا سافٹ ویئر تیار نہیں کیا گیا ہے کہ کوئی ویڈیو اپلوڈ کرے تو وہ سافٹ ویئر بتا دے کہ نہیں یہ ویڈیو میں آپ جو مسئلہ بتا رہے ہیں وہ غلط ہے۔ ہر رتبہ یابس جو ہے کہ نیٹ پر موجود ہے۔ میں نقصان بتا رہا ہوں کہ کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، ممکنہ نقصانات۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا نوجوان جس کے دل میں دین کا جذبہ پیدا ہوا، ایک جوش اور ایک امنگ لیا، وہ فوراً جو ہے کہ یوٹیوب کی طرف توجہ کرتا ہے، کسی ایک عالم دین کی سنتا ہے اور اس کے بعد اس کی پیروی کرتے ہوئے وہ اسی پر عمل کرنے لگتا ہے۔ اور جب اس پر عمل کرنے لگا تو اسے معلوم ہی نہیں ہوا کہ جو میں عمل کر رہا ہوں اس کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اور اس کے کیا کیا فوائد ہو سکتے ہیں، اس کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، اس کے کیا کیا فوائد ہو سکتے ہیں۔ ہم نیٹ سے جو دین سیکھ رہے ہیں، اگر وہ دین محبت سکھا رہا ہے تب تو وہ اسلام ہے، اگر وہ دین اختلاف سکھا رہا ہے، اگر وہ دین انتشار سکھا رہا ہے، اگر وہ دین آپسی بھائی چارہ کو ختم کر رہا ہے تو سمجھ لیں کہ اللہ کے رسول کا نام لے کر کے مولوی نے گمراہ کر دیا ہے، اللہ کا نام لے کر کے، رسول اللہ کے حدیث پڑھ کر کے اس نے گمراہ کر دیا ہے۔ جس دین میں اتحاد تھا، جس دین میں اتفاق تھا، جس دین میں محبت تھی، وہ دین پھر اختلاف نہیں سکھا سکتا ہے، وہ دین پھر لڑائی اور فساد نہیں سکھا سکتا ہے۔ آج صورتحال یہ ہو کر کے رہ گئی ہے، معافی چاہوں گا میں، چند مسائل ایسے ہیں جس کا درجہ افضلیت کے مقام پر ہے۔ کیا؟ افضلیت کا درجہ رکھتا ہے۔ افضل کس کو بولتے ہیں یہ ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ دین میں 3 طرح کے احکام ہوں گے۔ ایک حکم ہوگا فرض، کرنا ہی ہے، اس کو نہیں کریں گے تو چارہ کار نہیں، یہ اللہ کی طرف سے، اگر نہیں کریے گا تو حرام ہوگا، فرض۔ دوسرا حکم کیا ہے؟ واجب، جو فرض سے تھوڑا درجے کا کم ہے، یہ بھی تقریباً ضروری ہے۔ اور تیسرا درجہ جو ہوتا ہے افضل، مستحب۔ اب آپ نیٹ پر جو سرچ کریں گے اس میں عالم صاحب بتائیں گے کہ نہیں حدیث شریف میں ایسے ہے، ایسے کرنا ہے، اور آپ نے سنا اور آ کر کے اپنی مسجد میں اپلائی کر دیا اس کو۔ اچھا، جس وقت آپ وہ مسئلہ سیکھ رہے ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں تحت شعور میں یہ بھی بات آ جاتی ہے کہ جو میں اس پر عمل کر رہا ہوں یہی صحیح ہے، باقی سب غلط ہے۔
बाकी सब, क्योंकि फलाने मौलाना ने यूट्यूब पर जो है कि कह दिया है तो यही मसला सही हो सकता है, और उसको हम लेकर के मस्जिद में आ जाते हैं और मस्जिद में देखिए उठा पटक होती रहती है, लड़ाई हो रहे हैं, वो उसको गलत कह रहा है, वो उसको गलत कह रहा है। ऐसा आप लोगों ने देखा है कि नहीं? ये इंटरनेट के नुकसानात मैं आपको बता रहा हूं। इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि बिलाशुबा अच्छी चीज़ जहां से भी मिले उसे ले ले, अच्छी चीज़ जहां से भी मिले उसे ले ले, लेकिन उसको वेरीफाई ज़रूर करवा ले। अगर आपके अंदर इतना इल्म है कि आप उसको खुद वेरीफाई कर सकते हैं तो आप खुद वेरीफाई करें। अगर इतना इल्म नहीं है, फसलू अहले ज़िक्र, कुरान ने कह दिया अहले ज़िक्र से पूछो, अहले इल्म से पूछो। व इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हें मालूम नहीं है तो आप अहले इल्म से पूछिए कि मैंने नेट पर यह मसला देखा है, इस पर अमल किया जा सकता है। एक आलिम बनाइए, अपना पर्सनल दोस्त बनाइए। हम दुनिया में हर चीज़ के लिए दोस्त बनाते हैं कि नहीं? कहीं पार्टी करनी होती है उसके लिए हम दोस्त बनाते हैं, कहीं बिजनेस करना होता है उसके लिए हम दोस्त बनाते हैं, कारोबारी के लिए अलग दोस्त होता है, तो दीन के लिए भी अलग दोस्त होना चाहिए। आलिम से आप दीन के हवाले से दोस्ती कीजिए, उनसे कुर्बत हासिल कीजिए, उनसे मसाइल पूछिए। आलिम का काम क्या है? अगर कोई सोचता है कि 2 रकत की नमाज पढ़ाना आलिम का काम है तो हरगिज़ नहीं। आलिम का काम रहबरी और रहनुमाई है। आलिम का काम अवाम को हक का रास्ता दिखाना और इल्म की बातें बताना है। अगर आपने इल्म की बातें आलिम को छोड़ करके और मशीनों से हासिल करना शुरू कर दिया तो फिर तो आलिम का काम ही खत्म है कि नहीं? और ये भी देखिए महरूमी हमारी, हदीस शरीफ में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि इस्लाम अजनबी होकर के दुनिया में आया था। इस्लाम अजनबी होकर के दुनिया में आया था। अजनबी किसको कहते हैं? जिसका कोई पुरसाने हाल ना हो, जिसको कोई पूछने वाला ना हो, जिससे कोई दिलचस्पी रखने वाला ना हो, उसी को ना अजनबी कहते हैं। तो इस्लाम अजनबी होकर के दुनिया में आया था और क़यामत जैसे करीब होगी फिर इस्लाम अजनबी हो जाएगा, इस्लाम अजनबी हो जाएगा। और आज हालत यही होकर के रह गई है। हर चीज़ में हम एक्सपर्ट तलाश करते हैं। अगर हम इंजीनियरिंग का अगर कोई मसला हो तो हम इंजीनियर ढूंढते हैं, अगर मेडिकल का कोई मसला हो तो हम बेहतर डॉक्टर ढूंढते हैं, अगर केस और मुकदमे का मामला हो तो हम बेहतरीन वकील ढूंढते हैं कि नहीं? कभी आपने वकालत का कोई मसला हो, कोर्ट कचहरी का कोई मसला हो तो किसी पान वाले से मसला पूछा है आपने? नहीं पूछा है। घर बनवाना हो, आपको इंजीनियर की ज़रूरत है, या कोई की मशीन जो है बेकार हो गई जिसके लिए आपको इंजीनियर की ज़रूरत है, तो आप जा करके किसी परचून की दुकान वाले से बोला आपने कि भाई मुझे घर का डिज़ाइन निकलवाना है, थोड़ा सा आप निकाल दीजिए? ऐसा नहीं होता है। हम हर चीज़ में एक्सपर्ट तलाश करते हैं। हमारा दीन इतना यतीम और गरीब होकर के रह गया है, इतना अजनबी होकर के रह गया है कि इसके लिए फिर हमें किसी आलिम और किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं है। बहुत हुआ तो हम इंटरनेट खोल लेते हैं और वहाँ से जो है कि मसला लेकर के चले आते हैं, और वो मसला लेकर के आए, आधा और कच्चा आपने सुना और आधा और कच्चा उसने बताया और आधा और कच्चा आपने अमल किया, उसी में लड़ाइयाँ हो गई। उसी में क्या हो गई? लड़ाइयाँ हो गई। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कूनू मा सादिकीन, सादिकीन की मजलिस में बैठें, उनसे पूछें, उनसे सवाल करें। जो जिस फील्ड का माहिर है आपको उसी से राब्ता करना होगा। एक हदीस गूगल में आपने देखी और उस हदीस को सोचा कि अल्लाह के रसूल की हदीस है, इस पर अमल नहीं करेंगे तब तो पूरी दुनिया जहान हमारी उजड़ जाएगी, और आपने उस हदीस पर अमल करना शुरू कर दिया। तब तो आप में और जो 9 साल और 18 साल मदरसे में किताबों की वर्कगर्दानी कर रहा है, तब तो उसमें और आप में कोई फर्क ही नहीं रह जाता है। नहीं ना रह जाएगा। आज इंटरनेट में किस मसले का हल नहीं है बताइए? यूनिवर्सिटियां बंद कर दी जाएं, मैथ की किताबों को आग लगा दिया जाए, साइंस के लेबोरेटरीज को जो है कि ताले लगा दिए जाएं, सब कुछ तो आ गया इसमें। आप कहिएगा जी नहीं, ये इल्म हमें डॉक्टर नहीं बना सकता, ये इल्म हमें इंजीनियर नहीं बना सकता, मोबाइल से हासिल होने वाला इल्म
हमें डॉक्टर नहीं बना सकता। मेरे साहब, बड़े अदब के साथ मैं आपसे सवाल करता हूं कि जब इंटरनेट से हासिल होने वाला इल्म आपको डॉक्टर नहीं बना सकता, इंटरनेट से हासिल होने वाला इल्म आपको वकील नहीं बना सकता, आपको इंजीनियर नहीं बना सकता, तो फिर यह हक आपको कहां से हासिल हो गया कि इंटरनेट से इल्म हासिल करके आप कहें कि अब हमें किसी आलिम की जरूरत नहीं, किसी मौलवी की जरूरत नहीं, किसी अल्लाह वाले इल्म हासिल वाले से हमें कोई सरोकार नहीं। ये कहां से हक हासिल हो जाता है, जरा सा बताइए। अक्ल में भी तो कुछ बातें आनी चाहिए। ये आज के दौर का सबसे बड़ा आलमिया है। हमारे नौजवान नस्ल बड़ी अच्छी पेशरफ्त किया, बहुत अच्छे इक़दाम किए, हमारे नौजवानों ने बड़ी अच्छी पहल की, दीन हासिल करने के लिए निकले, लेकिन शैतान ने उन्हें ऐसा गुमराह किया कि फिर ट्रैक से ही हटा दिया। शैतान तो हमारा खुला हुआ दुश्मन है ना, वो कब चाहेगा कि आप हिदायत पा जाएं, वो कब चाहेगा कि आप रहनुमाई हासिल कर लें। शराब को भी उसने आबे जमजम कह करके पिला दिया हमें, शराब को भी आबे जमजम कह करके पिला दिया, हमने बड़े शौक से पी लिया। क्यों? क्योंकि बोतल पे लिखा हुआ था आबे जमजम। लम्हे फिक्रिया है मेरे दोस्तों, हर मोहल्ले में मस्जिद है, हर इलाके में एक बड़े मुफ्ती हैं। आप तलाश कीजिए, ढूंढिए, अपनी जरूरत के मुताबिक आलिम को तलाश कीजिए और उससे मसाइल पूछिए, उससे मसाइल पूछिए, वो बताएगा। क्यों? इंटरनेट से आप जब सवाल देखते हैं ना, तो कोई जरूरी नहीं कि आप जब क्रॉस क्वेश्चन करेंगे तो उसका जवाब भी दे दें, लेकिन जब किसी आलिम के पास बैठ करके क्रॉस क्वेश्चन करिएगा ना, तो उसको बताएगा। आलिम आपके हालात को देखेगा, आलिम आपके ख्यालात को देखेगा, आलिम आपके माहौल को देखेगा, आलिम किस इलाके में है उस इलाके के एतबार से सवाल के जवाब को देगा। अब आप कहिएगा कि जवाब इस हालात और माहौल देख करके दिया जाता है, बिल्कुल दिया जाता है। मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूं, एक छोटी सी मिसाल। हदीस शरीफ में रफ़ा यदैन करने की हदीस है कि नहीं? बिल्कुल हदीस, और सही हदीस है। रफ़ा यदैन की हदीस है और सही हदीस है। क्या है? सही हदीस है। और उन्हीं हदीस की किताबों में रफ़ा यदैन ना करने की हदीस है, और वो भी सही है। रफ़ा यदैन ना करने की हदीस है, वो भी सही है, दोनों हदीस सही। अब आपको वो हदीस मिल गई जिसमें रफ़ा यदैन करनी थी, आपने रफ़ा यदैन करना शुरू कर दिया, लेकिन कहाँ किया आपने? ऐसी जगह किया जहां पे कोई रफ़ा यदैन नहीं करता था, जहां कोई रफ़ा यदैन नहीं करता था, आपने रफ़ा यदैन करना शुरू कर दिया। अब जरा अंदाजा लगाएं, जहां पर सब लोग सफेद सफेद कपड़े पहने हुए हों और आप काला कपड़ा पहन करके चले जाएं, हालांकि काला कपड़ा पहनना हराम तो नहीं ना है, न सफेद कपड़ा पहनना वाजिब है, लेकिन सब लोग सफेद सफेद कपड़े पहने हुए हों और आप काला कपड़ा पहन करके चले जाएं, अटपटा लगेगा कि नहीं? अटपटा लगेगा ना। अब अगर आप किसी आलिम से पूछें कि यहां पर सब लोग सफेद कपड़ा पहने हुए हैं, मैं क्या करूं, तो वो आलिम दीन अपनी फरासत से, अपनी बसारत से उस मस्जिद के और उस इलाके के अहवाल को देखते हुए, नफ्सियात का ख्याल रखते हुए, वो कहेगा मेरे भाई अगरचे काला कपड़ा पहनना भी जायज़ है, अगरचे काला कपड़ा पहनना भी जायज़ है, लेकिन इतने लोगों में तुम अजीबो गरीब ना लगो, इसलिए तुम भी सफ़ेद कपड़े पहन करके चले जाओ। सुभान अल्लाह। बताइए, नेट पर जाकर के पूछिए भाई काला कपड़ा पहनना हराम है, वो बोलेगा बिल्कुल नहीं, है कि नहीं? सेम यही हालत होकर के रह जाती है। रफ़ा यदैन करना और रफ़ा यदैन ना करना, ये दोनों मसले दर्जे में एक जैसे हैं। यानी जो रफ़ा यदैन ना करे, जो रफ़ा यदैन ना करे उसकी भी नमाज हो जाएगी, और जो रफ़ा यदैन करे उसकी भी नमाज हो जाएगी। नमाज में जर्रा बराबर फर्क नहीं होगा। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि रफ़ा यदैन अगर कोई कर लेता है तो नमाज में कोई फर्क नहीं आएगा, और जो लोग कहते हैं कि रफ़ा यदैन ना करने से नमाज ही नहीं होगी, वो भी अपनी इस्लाह कर ले कि रफ़ा यदैन ना करने वाला की भी नमाज हो जाती। फर्क यहां पर आ जाता है कि अफजल क्या है। अहनाफ के नज़दीक अफजल ये है कि ना किया जाए, शवाफे और इमाम अहमद इब्न हंबल के यहाँ है कि कर लिया जाए। दोनों तरह की हदीसें मौजूद हैं। तो ये आप आलिम से जब जुड़ेंगे तो आलिम आपके हालात को देख के, माहौल को देख करके जवाब देगा। अब नेट पर जो जवाब दे रहा है वो भी गलत तो है नहीं, लेकिन वो आपके हालात को नहीं देख रहा है, आपके जज्बात को नहीं देख रहा है। और कुछ लोग तो इंतशार करने के लिए ही बैठे हैं यूट्यूब पर। कुछ लोगों ने कसम खा लिया है कि उम्मत के शिराजे को बिखेर करके रख देना है।
कुछ लोगों ने कसम खा लिया है कि उम्मत में जो इत्तेहाद है उसको एकदम टुकड़े टुकड़े करके रखना है, तो फिर ऐसे लोगों की बात ही सुनना जो है कि फजूल है। तो आप अपने आलिम से रब्ता करें। आप अपने लिए एक पर्सनल डॉक्टर रखते हैं ना जी, एक पर्सनल आलिम भी होना चाहिए आपका। दोस्ती करें उससे, मसाइल पूछे उससे और कहें कि हजरत ये अमल करूं तो मेरे लिए कोई नुकसान नहीं होगा, वो आलिम आपको बताएगा। इन्हीं चंद बातों के साथ आज की गुफ्तगू को मुकम्मल करते हैं। इस दुआ के साथ कहने सुनने में जो लफ्ज़िश अल्लाह की बारगाह में इस्तग़फ़ार है, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।